Imagine standing at the edge of the world. Your body is exhausted. Your mind is screaming for you to go back. But you're still moving forward. So Broad Peak, the 12th highest mountain of the world at 8,000 plus meters, is the ultimate test of human resilience and spirit. And that person standing there, not willing to go back, is standing right in front of you. So I've climbed Manaslu in Nepal, the 8th highest mountain of the world, which was a very smooth climb, I would say, despite of the challenges that Manaslu offers. But for me, the Broad Peak, the 12th highest mountain of the world, was kind of a survival summit. So it's a miracle that I'm standing here. I descended the mountain without oxygen, hallucinating, with snow blindness, with frostbite, which I thought frostbite, but it was frostnip at that time. So it's a miracle. So what happened was, why I face these things? This can happen at any mountain, I know that. Because किसी mountain पे ऐसा होता है, किसी पे avalanche के chances ज़्यादा होते हैं, किसी mountain पे कि blizzard आ सकता है, किसी mountain पे rock fall ज़्यादा है, किसी mountain पे किसी type का challenge है. I also went for K2 right before the Broad Peak. I was leading 5 women for the K2 women expedition for the first time. So K2 पे there is also risk. There is also एक bottleneck है, एक point है, and there is also a rocky portion. So you can be prepared for that. I was also prepared somehow. When I went for Broad Peak, I was going all alone. Expeditions पे ऐसा होता है कि आपके साथ एक guide आप hire करते हैं. In Nepal, you hired a Sherpa. In Pakistan, you hire a guide. So I was with my guide. So somehow this happened with me just because I'm a female. So I'm a female climber. If I'm one of the leading female mountaineers, so that means you can imagine कि कितनी कम ख़वातीन जाती होंगी and how they can imagine us on the top of the mountains. So वो तो देखते ही कह देते हैं कि ठीक है ये तो नहीं जाएंगे और ओके ठीक है इनको जैसे मर्जी मैनिपुलेट कर लो ये तो अभी कुछ कह देंगे तो ठीक है ये रोध होके वापस चले जाएंगे. But that was not my point, but that was not my purpose. मैं चाहती थी because my project was women empowerment this year, like last year in June, July. So I was determined that I will go. मेरे जो guide थे, somehow he felt sick और उन्होंने कहा कि I'm coming, you go. I started moving. So summit push पे ऐसा होता है कि there is a certain point जिसके बाद से you have to climb continuous. So continuous you will do the summit and then you will come back to the exact same point जहाँ से आपने start किया था. For the Broad Peak, out of the 14th peak, 8,000 meters peak, Broad Peak ka summit is the largest summit push. So 16 hours. It will take 16 hours from 7,100 meters till the summit and then you come back to the same point. So with 16 hours, I was going all alone. अब उसमें मैं अकेले जा रही हूँ, but I was determined कि मैंने जाना है and I can do it, I will do it. So somehow I was, if I imagine तो वो picture मेरे सामने आती है. There was a time जहाँ पे because जब climbers start करते हैं रात के time पे चढ़ना शुरू करते हैं the climb because we do it at night time ताकि वो सूरज की रोशनी ना हो और बर्फ और पत्थर वगैरह everything should be उसकी जगह पे तभी हम climb करके जा रहे होते हैं. So somehow मैंने वो वाला part कर लिया और ऐसा भी हुआ कि बाद में बहुत से climbers ऐसे होते हैं जो वापस आ रहे होते हैं या somehow Broad Peak में it is very broad तो वो traverse करके जा रहे होते हैं. There was just rope which is me and the greater power. मैं ऊपर देखती थी मैं कहती थी कि नहीं I have to go, this is the way, यही रास्ता होगा इधर ही जाना है. So somehow summit कर लिया. When I was at the top, I even recorded a message there that this summit is for all the females out there. I recorded this message that this summit is for my mother who is taking care of my kids back at home.
So I recorded that message there that this summit is for my husband, for that kind of a man जो कि अपनी बेगम की फॉर्म में या बहन माँ सबको जो सपोर्ट करते हैं. This is for all the men out there who are very much supportive. So ये तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया and I was very much happy कि मैंने समिट कर लिया and I'm at the top. लेकिन उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा था कि जो ऑक्सीजन मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑल्दो वो मैं सिर्फ एक 1 पॉइंट पे यूज़ कर रही थी, बिकॉज आई न्यू दिस थिंग एंड आई एम ऑल अलोन और मैं ऊपर जा रही हूँ, सो मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं. आई वाज जस्ट मूविंग. वो 16 घंटे शाम को 7 बजे क्लाइंब स्टार्ट करके ऑल नाइट और सुबह 11:30 बजे आई वाज एट द टॉप ऑफ द ब्रॉड पीक. वहाँ से आई रैन आउट ऑफ ऑक्सीजन. अब वो जब ऑक्सीजन ख़त्म हुई तो आई हैव नो आइडिया कि उस टाइम पे मुझे कि अगर मैं अब सोचूं मुझे क्या करना चाहिए था या मैं उसके लिए प्रिपेयर अगर करके जाती. सो यू कैन इमेजिन इट इन दिस वे कि आप प्लेन पे जा रहे हैं, जहाज़ भी 8000 मीटर पे तो जाते हैं ना, तो वहाँ पे अगर पायलट आपसे कह दे कि प्लीज़ यहाँ से सब पैसेंजर्स निकल के बाहर खड़े हो जाएं. सो कैन यू इमेजिन, यू नो व्हाट्स गोना हैपन देयर अगर आप वहाँ पे पायलट आपको बाहर खड़ा कर दें. सो दैट्स व्हाट हैपेंड विथ मी. अचानक से ऑक्सीजन ख़त्म हो गई. अब वो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई और उसके बाद स्टिल आई वाज डिटरमिन्ड कि मैंने वापस जाना है. आई हैव टू गो बैक बिकॉज समिट में ये होता है. सो व्हेन आई क्लाइंबर गोज़ अप, जब वो समिट कर लिया, अगर डिसेंट सक्सेसफुल नहीं होता सो दैट्स नॉट अ समिट. डिसेंट नहीं हुआ, अगर आप वापस ही नहीं आए, सो दैट्स नॉट अ समिट. सो माई प्रोजेक्ट वॉज वेरी क्लियर. मुझे था कि वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट, अगर अभी मैंने ये नहीं किया, सो यू नो व्हाट, बाकी ख़वातीन के लिए इतनी मुश्किल है ऑलरेडी, तो कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा. नो वन इज़ गोना बिलीव. वो पहले भी लोग बिलीव नहीं करते. समहाउ माउंटेन पे जाने से ज़्यादा हमारे लिए ये मुश्किल होता है कि वहाँ तक पहुँचे कैसे, बिकॉज समहाउ पीपल डोंट बिलीव कि ये कर भी सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे. सो वो स्पॉन्सरशिप एंड एवरीथिंग, इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस. क्लाइंब डिफ़िकल्ट नहीं है. सो आई वाज डिटरमिन्ड देयर. अब मैंने जब डिसेंट स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड हेलुसिनेटिंग. मुझे लग रहा था कि मैं नीचे चले गई हूँ बेस कैंप पे एंड आई एम स्लीपिंग और मैं सो रही हूँ. सो लिटरली आई हैड टू किल माई सेल्फ इन माई ड्रीम्स. अपने आप को उठाने के लिए मार के कि नहीं, आई एम हियर, मैंने डिसेंट करना है, मैंने नीचे वापस जाना है. उस टाइम पे लोग मुझे, आई कैन टेल यू कि वहाँ पे लोग मुझे सबसे ये सवाल कर लेते थे कि आप ठीक हैं, आर यू ओके, इज़ एवरीथिंग ओके. मुझसे ये सवाल किया जाता था इवन बिफोर द समिट पुश कि व्हाट्स गोना हैपन, आपने सोचा है कि आपके बच्चों का क्या होगा अगर आप वापस नहीं गई, व्हाट इफ़ यू डोंट गो बैक. आई वाज लाइक, इवन इफ आई डोंट गो बैक, माई family is going to be proud, my son is going to be proud of his mother, कि ये हमारी माँ कुछ कर कर आई है and she was up to something. तो मुझे ये वहाँ एक्सप्लेन करना पड़ता था. सो समहाउ मैंने डिसेंट जब स्टार्ट किया, मैं सोती थी, मैं अपने आप को उठाती थी एंड मुझे स्नो ब्लाइंडनेस भी हो गई. अब स्नो ब्लाइंडनेस में इतना ब्लर नज़र आ रहा है और सारे क्लाइंबर्स जो कि 11:30 पे अगर समिट हुआ है, तो आइडियली मुझे 7-8 बजे 7100 मीटर्स जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ होना चाहिए था. बट आई रीच देयर मिडनाइट. रात को 1 बजे मैं पहुँची. देयर वॉज अ पॉइंट आई एडमिट कि मैंने सोचा कि ठीक है मैं यहीं बैठ जाती हूँ, ठीक है, ओके. बट समहाउ उस टाइम पे मुझे ये पिक्चर आती थी कि नहीं, आई हैव टू गो बैक. मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, मेरे बच्चे मेरे लिए मोटिवेशन थी, बट बाकी लोगों के लिए मेरे बच्चे मेरे लिए मेरी वीकनेस थी. एंड दे वर आस्किंग मी दीज क्वेश्चंस के व्हाट इफ़ यू डोंट गो बैक, आरंट यू अ सेल्फिश मदर, कि आप तो अपने बारे में सोच रही हैं. इट्स जस्ट अ क्लाइंब, गो एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली, इट्स ओके, गो बैक. आई वाज लाइक नो, आई एम नॉट गोना गो बैक. मैं यहाँ किसी पर्पस से आई हूँ एंड आई विल डू इट. मैंने वो डिसेंट किया समहाउ, और वहाँ पे आके जब मैं सो गई, लिटरली आई एम नॉट द सेम पर्सन जो कि ब्रॉड पीक पे उस टाइम पे जो समिट करने गया था. आई एम नॉट द सेम पर्सन एट ऑल. जब मैं वहाँ पे सुबह उठी, आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन. इट वॉज समहाउ, मुझे ऐसा लगा कि ये एक नई ज़िंदगी है, इट्स अ न्यू लाइफ, इट्स अ न्यू बिगिनिंग. और वहाँ पे जो खुशी मैंने महसूस की
वो मैं इट कांट बी एक्सप्लेन कि वो उस टाइम पे मुझे क्या फ़ील हुआ कि मैं क्या कर कर वापस आ गई हूँ। और जब मैं सुबह में उठी, स्नो ब्लाइंडनेस अगर टेम्प्रेरी हो तो आपको नज़र आता है, ऐसा नहीं होता, जब आप सो के उठते हैं तो वो ठीक हो जाता है। एंड इट वाज जस्ट फ्रॉस्ट निप, जो कि मुझे 2 मंथ्स लगे थे, मेरे डिजिट्स जो थे वो उनके सेंसेशन वापस आ गई थी और बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था, बट स्टिल इट वाज अ सर्वाइवल काइंड ऑफ समिट। और वो आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ। और समहाउ ये थीम था सुरखाब के पर, इट्स सो इमोशनल आई वुड से कि सुरखाब के पर वाकई हमें लगी है सुरखाब के पर, हमारे पास है सुरखाब के पर, एंड वी कैन डू इट। सो आई वुड लाइक टू से whatever mountain, जिस भी टाइप का माउंटेन हो आपकी ज़िंदगी में, whether it's a test, it's a kind of कोई जॉब से रिलेटेड चीज़ है, there is something at your workplace, whatever is needed to summit that mountain is within. It's within, आपके पास है, you can do it, you can ace it. बस थोड़ी सी डिटर्मिनेशन और resilience चाहिए उसके लिए, थोड़ा सा पागलपन चाहिए, I would say. So when I got this title, that I'm the second woman at Broad Peak, Pakistani woman at Broad Peak, to summit the Broad Peak. So it's just more than a title, more than this for me. Why? Because it taught me so many things. It taught me कि मैं कितनी strong हूँ, the resilience we have, the power we have. अब मैं कहीं पे जाऊँ and if I talk about my story, मैं अपनी स्टोरी थोड़ी सी भी शेयर कर लूँ तो लोगों को लगता है कि भाई नहीं, सिर्फ ये इसका समिट नहीं है, ये हम सबका समिट है, एंड दैट इज़ माई अचीवमेंट। अगर कहीं पे मैं बात कर रही हूँ और कोई आंटी ये मुझे कह रही हैं कि नहीं, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के मैं तुम्हारे लिए बेटा आ सकती हूँ, जब तुम वो पहाड़ चढ़ के आ सकती हो हमारे लिए, तो मैं ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ के आ सकती। एक टेड टॉक में मुझे उन्होंने ये कहा। सो इट वॉज काइंड ऑफ एन अचीवमेंट फॉर मी। अचीवमेंट ब्रॉड पीक नहीं है, अचीवमेंट वो टाइटल नहीं है, अचीवमेंट वो है जो वो प्यार, जो वो इज़्ज़त, वो जो मेरी अपनी फैमिली, लाइक वी वुमेन आर टुगेदर, तो वी आर अ फैमिली। सो वो जो आप सब प्यार से बात करते हैं, आप सब उसको फील करते हैं, सो दैट इज़ माई अचीवमेंट एक्चुअली। सो हाँ, सुरखाब के पर है हमारे पास, एंड वी कैन डू एवरीथिंग। थैंक यू।